Good morning, 7th class. Once again, we are here in science class. So, just a recap what we have done in our previous class. In our previous class, I told you about stomach. Stomach have three parts: mucus, hydrochloric acid, digestive juices. What all things they are digesting. I told you about liver, gallbladder, pancreas, and I'm glad you all have attempted assignments very well. So today let's start with next part of alimentary canal, that is small intestine. So let's start our class. Here we come. Small intestine. Small intestine, as I told you, it is big in size, but due to its diameter, small diameter, it is known as small intestine. So it perform three things. तीन चीज़ें करती है small intestine. First one is breakdown of carbohydrate, fats and protein, that is digestion. I explained this in previous class. Absorption and assimilation. So absorption and assimilation I'm going to explain today. So let's come to absorption in small intestine. Once the food is digested, means carbohydrates, fats and proteins, in the beginning of the small intestine it is digested. So next step is absorption. As I told you, the good or useful food items, nutrients should be absorbed by the blood. So absorption is the process by which digested food passes through the blood vessels in the wall of intestine. Absorption क्या होती है? वो process है जिसमें digested food means कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स जो हैं ब्लड वेसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल की एब्जॉर्ब कर लेती है. फाइन. सो एब्जॉर्प्शन बेसिकली होता है विलाय में. ओके, सो विलाय इज अ पार्ट दैट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन absorption. So let's start what is villi. But before that, let's play a game. At the top of this page, I have made two figures and the game is collect the dot. First, collect dot in this straight line and secondly, collect dots in this line. As I have done it for you, in A line there are 22 dots, but in the B one there are 44 dots. So where are the more dots? In B? Fine, same. Now imagine yourself at the place of A and B. अपने आप को ही A या B पर आप imagine करिए and imagine करिए these dots are toffees or chocolates. So which path would you prefer to go? कौन से वाले path पे आप जाते? A वाले पर या B वाले पर? If I would be there, I'll definitely prefer to go at B. B पर जाते because obviously here I'll get more chocolates and toffees. Fine. So same part, same point as this with villi. Villi are the finger-like projections. जैसे ये अगर wall है तो ये finger-like projections. These are known as villi. So finger-like projections present in small intestine. See, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके एक छोटे से सेक्शन को मैंने बड़ा करके दिखाया तो उसमें बहुत सारे ऐसे फिंगर्स जैसे प्रोजेक्शन होते हैं. जैसे हम फिंगर्स को ऐसे हैंग कर देंगे ना, ऐसे ही बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और इन सब में ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका काम है जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेना. फाइन. सो ऑब्वियसली अगर इंटेस्टाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती तो लेस एब्जॉर्प्शन होती. तो गॉड ने क्या किया, इस एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए विलाय बनाए ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाए. Right? So, understood? Villi are the finger-like projections present in small intestine to increase what? To increase surface area of absorption.
एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया, ज़्यादा जगह को बढ़ाने के लिए विलाय है. वेयर इज विलाय प्रेजेंट? विलाय इज प्रेजेंट इन स्मॉल intestine. Just have a look. Villi, finger-like projections in small intestine. Its location is small intestine. Function क्या है villi का? It increase surface area for the absorption of digested food. Fine. So let's come to this. Digestion हमने पढ़ लिया है. Digestion कहाँ से start होता है? Mouth से, then stomach, then small intestine. Next, एब्जॉर्प्शन विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स एब्जॉर्प्शन विलाई में होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है. दिस ऑल्सो डन. नाउ जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है वो कहीं यूज़ होगा. सो ये जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है ये कहाँ गया है? ये ऑर्गन्स के पास गया है, जिस भी ऑर्गन के पास कुछ भी चीज़ की कमी है. सो नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन. So assimilation is the process of utilizing absorbed food by different organs. जो भी food absorb किया गया है अब उसे different organs use करेंगे. Suppose I am stomach and I am lacking protein. मुझ में प्रोटीन की कमी है, so I'll take protein from blood. मैं blood में से प्रोटीन ले लूँगी. So basically blood will act as a shopping mall. blood जो है हमारी बॉडी में एक शॉपिंग मॉल की तरह एक्ट करता है जिसमें से आप जो चाहें चीज़ें जो आपको चाहिए, जिस भी ऑर्गन को चाहिए, जिस भी सेल को चाहिए, वो उस चीज़ को ले सकता है. फाइन. नाउ ऑब्वियसली इफ़ देयर आर सम यूजफुल थिंग्स देयर आर वेस्ट थिंग्स ऑल्सो. वेस्ट थिंग भी होंगी. सो जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता या फिर जो हमको नहीं चाहिए, वो बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी है. वो रिमूव नहीं होगा तो क्या होगा? बॉडी में पॉइजन फैलेगा, टॉक्सिक्स बनेंगे, हमें प्रॉब्लम होने लगेगी, पेन होगा एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स एज वेल. सो इट इज़ मस्ट टू रिमूव. इसको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है. सो इन डाइजेशन प्रोसेस 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस. 2 तरीके के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, लिक्विड वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट. तो जनरली हम यहाँ पर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में सॉलिड वेस्ट सिक्रीट करते हैं, बिकॉज जो लिक्विड वेस्ट होता है वो ब्लड में मिक्स होके किडनी के थ्रू बाहर आता है. दैट इज नोन एज यूरिनरी सिस्टम दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर. फाइन. सो लेट्स कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेस्टाइन विच इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन. Large intestine. Its length is 1.5 meter. As I told you, due to its diameter, big diameter, it is known as large intestine. Then its function is it absorb water. बेसिकली अब कुछ सॉलिड चीज़ हमारी बॉडी में मूव करेगी तो हमें दर्द होगा ना, तो इसलिए वाटर उसके साथ मिक्स होता है ताकि वो चीज़ सॉफ्ट हो जाए. लेकिन हम नहीं चाहते हमारी बॉडी से वाटर रिलीज हो, बहुत ज़्यादा पानी निकल जाए, हमें भी तो वाटर चाहिए. सो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? जो वेस्ट में, जो सॉलिड वेस्ट में वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेना. सो बेसिकली वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है फूड में से, अनडाइजेस्टेड फूड में से, वो कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब सम सॉल्ट्स जैसे नॉर्मल सोडियम क्लोराइड आयंस. तो ये पानी के साथ घुल जाते हैं तो पानी के साथ ही एब्जॉर्ब होंगे ना. तो लार्ज इंटेस्टाइन व्हाट इट इज़ डूइंग, इट एब्जॉर्ब वाटर. ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है. इट एब्जॉर्ब सॉल्ट्स. पासेज रिमेनिंग वेस्ट टू रेक्टम. उसके बाद क्या करती है? जो भी वेस्ट है उसे रेक्टम में भेजती है. दैट इज अनदर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. सो लार्ज इंटेस्टाइन एज यू कैन सी रिमेनिंग सेमी सॉलिड फूड. इसके अंदर जो आता है वो फूड जो है सेमी सॉलिड हो जाता है, बिल्कुल मतलब ना बहुत ज़्यादा सॉलिड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब हो गया. अब वो सेमी सॉलिड वेस्ट कहाँ जाता है? रेक्टम में चला जाता है. रेक्टम, फॉर दैट जस्ट हैव अ लुक टू दिस डायग्राम. दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन. इसमें से खाना डाइजेस्ट होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहता है. जो सेमी सॉलिड बच गया वो यहाँ रेक्टम में स्टोर होता है. रेक्टम में जब ये पूरा पाउच भर जाता है सो प्रेशर के थ्रू, एनस के थ्रू सारा वेस्ट, सॉलिड वेस्ट बाहर आ जाता है. सो दिस रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, इस रिमूवल को, जो सॉलिड वेस्ट का रिमूवल है थ्रू एनस, इज नोन एज एक्सक्रीशन. नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रीवियस पेज. सो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? रिमेनिंग सेमी सॉलिड वेस्ट है, वो कहाँ जाएगा? रेक्टम में.
रेक्टम एक पार्ट है जो कि कलेक्ट करता है सेमी सॉलिड वेस्ट को टाइम टू टाइम, मीन्स ऐसे नहीं है अभी खाया है और अभी डाइजेशन हो गया, नो, डाइजेशन टेक 6 आवर्स। एक बार खाना खाने के बाद 6 घंटे में प्रॉपर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद भी फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाता है, तो वो धीरे धीरे रेक्टम फिल हो जाता है। वंस रेक्टम इज फिल्ड, रेक्टम फिल हो गया तो एनस अपने आप ओपन हो जाएगा और वो फूड बॉडी से बाहर आ जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड। सो दिस रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज ईजेशन। एज आई टोल्ड यू, कैसे याद करेंगे इसको? ई फॉर ईजेशन, ई फॉर एग्जिट, बॉडी से बाहर जाना। फाइन। So with this, human digestive system is complete. So in next class I will explain digestive system of ruminants and digestion in amoeba. So till then, start preparing notes, 7th class. Start preparing notes from the video itself. Start finding out questions from NCERT book. If you don't have NCERT book, please download NCERT books from online portals. Okay, stay at home, stay healthy, submit assignments on time, take care and improve your handwriting. So take care, bye.